Good morning, students. So here I am going to start the remaining examples of omega, that is the complex cube root of unity, exercise 1.4. Okay, so in the previous lecture we take the examples on omega. So what is actual omega? Omega is nothing but the complex cube root of unity. हमने लास्ट लेक्चर में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पढ़ा था. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मीन्स वन हैज थ्री रूट्स because it is a cube root. So that's why first is a real number, that is 1, second is alpha, and third is beta. And we know that alpha is beta square and beta is alpha square. So alpha and beta are the complex conjugate of each other. That's why we consider one is omega. So obviously second is what? Omega square, because one is the square of other and that other is square of first, second. So that's why first is 1, second is omega, and third is omega square. And that formulae are first formula is omega cube is equal to 1, and second formula 1 plus omega square is equal to 0. So these are two formulae on omega. So it is very simple concept. So there are lots of examples on omega show that left hand side is equal to right hand side. So this is example number 6, means we have already taken the 5 examples on show that in the previous video lecture. So here example number 6. So let us write here. So let us write, consider left hand side. Left hand side is a plus b omega plus c omega square upon c plus a omega plus b omega square. So हमें प्रूव करना है ओमेगा स्क्वायर. So it is not easy to prove this. So we have to apply certain logic. हमें एक लॉजिक अप्लाई करना है. So जैसे ही ओमेगा स्क्वायर आएगा तो अदरवाइज नहीं आएगा. So best way, taking common from numerator omega square. It is a. Omega square common लेना means divided by omega square by each term. A by omega square, b omega by omega square plus c omega square by omega square. That is the actual process of taking common. Denominator no change at all. C plus a omega plus b omega square. Omega square common लिया means what? Divide each term of numerator by omega square. सब term को omega square से divide करना है. So this is omega cancel. Omega square cancel. Omega square common. A by omega square plus b by omega plus c divided by, as it is, c plus a omega plus b omega square. So right now हमें ओमेगा स्क्वायर ही लाना है सिर्फ, मीन्स ये सब कैंसिल होना चाहिए. So यहाँ से इम्पोर्टेंट स्टेप ये बनेगी, दिस इक्वल टू राइट हियर. इसको मैं ओमेगा क्यूब करता हूँ, इसको भी मैं ओमेगा क्यूब करता हूँ. इसको ओमेगा क्यूब करना है मीन्स व्हाट? इसको एक ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. इसको ओमेगा क्यूब करना है मीन्स ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. सो न्यूमरेटर ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए ओमेगा बाय ओमेगा क्यूब बी ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्यूब प्लस सी डिवाइडेड बाय ए ओमेगा सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, बिकॉज द रीजन इज व्हाट? ओमेगा क्यूब इज हाउ मच? 1. सो दिस इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर. So reason is omega cube is 1. Now this factor and this factor complete cancel, because c plus a omega plus b omega square, c plus a omega plus b omega square, same factor on numerator denominator, definitely cancel. So here becomes only omega square. So this is right hand side, hence proved. It's very simple. Okay, ready करो. Let us see number 7 number example on that same omega, that is show that this is left hand side is equal to 0.
So we have to prove this is equal to 0. So omega is what? Complex cube root of unity. So again let us consider left hand side. ये सब एडिशन में है, सो फ्री करेंगे ब्रैकेट को. a प्लस बी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा. So this is equal to, taking a common from this, 1 plus omega square. Taking b common from this curly underline term, taking b common, that is also 1 plus omega square. 1 plus omega square. So we know that this is 0. So a into 0 plus b into 0, this is 0 plus 0 is 0. So reason is what? 1 plus omega square is equal to 0. So this is 6th number example. 7. We will take one more. Example number 7. That is a minus b omega, a minus b omega square is equal to a cube minus b cube. A cube minus b cube. So example number 7 है. So we have to prove again that this is a cube minus b cube. Left hand side is equal to a cube minus b cube. So formula for what is a cube minus b cube? So I will write here. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So ये formula, this is identity of a cube minus b cube. A cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. So इस ये फैक्टर को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको वैसे रहने देंगे, सिर्फ ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. सो लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द लेफ्ट हैंड साइड. a minus b omega square. सो ये टर्म एज इट इज, इस दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू दिस ए बी ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर, b ओमेगा इंटू ए बी ओमेगा माइनस b ओमेगा स्क्वायर. दिस इज माइनस इंटू माइनस प्लस b ओमेगा क्यूब. बहुत ही सिंपल प्रोसेस है. सिर्फ रैंडमली नहीं सॉल्व करा, अगर इसको हम रैंडमली सॉल्व करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा. सो लॉजिक बिहाइंड दिस व्हाट, राइट साइड इज व्हाट, a क्यूब माइनस b क्यूब. मीन्स ये जो फैक्टर a माइनस b, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो एज इट इज रखेंगे, बिकॉज वही तो लाना है, a क्यूब माइनस b क्यूब. सो वो दो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. अब ये सॉल्व करने के बाद देखो कैसा आता है. a माइनस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर, इसमें से माइनस a भी कॉमन लेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस बी ओमेगा क्यूब एज इट इज. फ्रॉम मिडल टू टर्म्स, ये मिडल दो टर्म्स में से हम माइनस ए भी कॉमन लें, दैट इन ब्रैकेट बिकम्स ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा. सो नाउ वी नो दैट ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज इक्वल टू -1 एंड ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. वही फॉर्मूला, इधर 1 इधर आ गया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 0. ओमेगा क्यूब इज हाउ मच, 1. सो लेट अस सी हियर, a माइनस b इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस ए बी इंटू -1 प्लस b इंटू बी स्क्वायर ए b इंटू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी ओमेगा स्क्वायर b इंटू बी स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा क्यूब. ओके, सो दिस इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. And this is a formula, this is identity, algebraic identity, a minus b into a square plus ab plus b square. So this is a cube minus b cube, and this is right hand side. So 11th स्टैंडर्ड में इससे इजी पार्ट एक्सपेक्ट मत करो, बहुत ही सिंपल कंटेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का. एग्जाम्पल्स ऑन ओमेगा.
सो वही पैटर्न है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको सिर्फ ये दो फॉर्मूले आपको अप्लाई करना है। पहला फॉर्मूला ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, दूसरा फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही दो फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करना चाहिए। और थोड़ा जजमेंट लगता इफ राइट हैंड साइड इज डिफाइंड, वो जजमेंट है कि रैंडमली हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एग्जाम्पल सिर्फ सॉल्व है तो हम कौन से मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर प्रूव करना है तो सर्टन वे से अगर आप जाएंगे तभी इसका आंसर विद इन सम स्टेप्स, ये 2-4-5 स्टेप में उसका आंसर राइट हैंड साइड डेफिनेटली आएगा। ओके, now more examples on omega. Example number 3 from exercise 1.4. If omega is the complex cube root of unity, then find the values. अब यहाँ पर हमें वैल्यू फाइंड करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये टाइप के एग्जाम्पल्स नहीं है, सिर्फ आपको इसको सॉल्व करना है। एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के बाद वो उसका आंसर बन जाएगा। सो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 एग्जाम्पल्स है, टोटल 5 एग्जाम्पल्स। मैंने एक एग्जाम्पल्स मेरे 3rd नंबर का स्किप किया है, 1, 2, 4th and 5th. So let us start. Let omega is complex cube root of unity. So therefore we know that ये आपको लिखना है। We know that omega cube is equal to 1 and 1 plus omega square is equal to 0. ये दो फॉर्मूले, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 and 1 plus omega square is equal to 0. So let us start the first example. ये उसका फर्स्ट एग्जाम्पल, ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा। सो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज हाउ मच? माइनस ओमेगा। सो दिस इक्वल टू माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा। सो आंसर इज व्हाट? -1। ये आंसर एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का। ओमेगा कट कैंसल, मीन्स -1 इज देयर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज टू 4। सो इसमें से ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन लेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, टेकिंग ओमेगा स्क्वायर कॉमन। सो एक्चुअल कॉमन मीन्स व्हाट? एवरी टर्म डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर 1, ओमेगा क्यूब अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा रेज टू 4 अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन लिया है। सो दिस इज 0 इंटू 0। व्हाट इज आंसर ऑफ सेकंड? 0। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, राइट? सो आंसर ऑफ सेकंड इज व्हाट? 0। अब आंसर ऑफ फोर्थ, एग्जाम्पल नंबर 4, राइट द एग्जाम्पल, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब प्लस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। एग्जाम्पल नंबर 4 है। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ। इज इक्वल टू, ये दोनों में से मैं माइनस ओमेगा कॉमन निकलता हूँ, माइनस साइन कॉमन निकलता हूँ सिर्फ। ये 1 माइनस कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये होल क्यूब प्लस, राइट? ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर में क्लब करता हूँ, कलेक्ट करता हूँ एक जगह पे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा एज इट इज, होल क्यूब एज इट इज। लास्ट ब्रैकेट में क्या किया? ये 1 और ये प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको मैंने क्लब किया, एक जगह पे लिखा, और माइनस मिडल साइन जो माइनस ओमेगा है वो एज इट इज, होल क्यूब एज इट इज। दिस इक्वल टू 1 माइनस, व्हाट इज ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज -1. So it is 1 minus 1 whole cube. 1 plus omega square. 1 plus omega square is minus omega. Minus omega whole cube. 1 plus 1 2 cube.
minus 2 omega cube. 2 cube minus 2 omega cube. 2 cube is 8. नेगेटिव का क्यूब इज नेगेटिव. नेगेटिव नंबर का क्यूब कितना होता है? नेगेटिव. ऑड पावर नेगेटिव. इवन पावर होता तो पॉजिटिव. इवन पावर मीन्स 2, 4, 6, 8. दैट इज इवन पावर. ऑड पावर मीन्स व्हाट? 1, 3, 5, 7 like this. It is 2 cube. 2 cube is 8. Omega cube. So 8 minus 8, because omega cube is what? 1. 8 into 1. So 8 minus 8. What is the answer of 4? 0. Yeah, answer of 4. 1, 2 और नंबर 4. और एक बचा है नंबर 5. सिंपल वही भी. सो इज इट क्लियर? सो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस. सिर्फ आपको अप्लाई करना आना चाहिए. कौन से टर्म कलेक्ट करना है, कौन से टर्म को सेपरेट करना है, ये उसको समझना चाहिए. नाउ एग्जांपल नंबर 5. Example number 5. 1 plus omega. 1 plus omega. Second, 1 plus omega square. Third, 1 plus omega raised to 4. Fourth bracket, 1 plus omega raised to 8. इसको सिर्फ सॉल्व करना है, वैल्यू फाइंड करना है. सो पहले दो ब्रैकेट को कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज 1 प्लस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब. ये ओमेगा रेस टू 4 को मैंने स्प्लिट किया, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब. सेम ओमेगा रेस टू 8 को करेंगे, 1 प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब, ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर करेंगे, ये ओमेगा क्यूब. 3 plus 3 6, 6 plus 2 कितना? 8. Split up the power. 2, 3, 3 means what? 8. Now it is equal to 1 plus omega, 1 plus omega square, 1 plus only omega, 1 plus omega square only. This term is 1, this term is 1, this term is 1, because omega cube is how much? 1. So that's why omega into 1 is omega, omega square into 1 is omega square. So this is like this. Okay, now 1 plus omega into 1 plus omega square, this is 1 plus omega whole square. It is absolutely whole square. Now 1 plus omega square into 1 plus omega square, it is 1 plus omega square whole square. So what is 1 plus omega? 1 plus omega is minus omega square. Minus omega square whole square. 1 plus omega square is minus omega. Minus omega whole square. Is it clear? Now नेगेटिव का इवन पावर है, इट इज पॉजिटिव. ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर ओमेगा रेस टू 4. 2 into 2 4. ये रूल है, a रेस टू m होल रेस टू n इज a रेस टू m into m. द रूल्स ऑफ पावर एंड इंडाइसेस 7th स्टैंडर्ड में हुआ था ये. सो 2 into 2 4 हो गया. निगेटिव का इवन पावर पॉजिटिव, पॉजिटिव साइन लिखने की जरूरत नहीं, ए इंटू यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, इट इज ओमेगा स्क्वायर. नाउ 4 plus 2, अभी पावर की एडिशन होंगी क्योंकि ये रूल है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन. द रूल्स ऑफ पावर एंड इंडाइसिस. 4 plus 2 is 6, ओमेगा रेस टू 6. अब ओमेगा रेस टू 6 को कैसे करेंगे? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, उसको आगे स्प्लिट किया, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब. ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब इज 1, 1 into 1 is 1. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ एग्जाम्पल नंबर 5. सो प्रोसेस समझ में आना चाहिए, यही एग्जाम्पल्स, इतने सिंपल एग्जाम्पल्स है. ओके, सो नाउ विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल्स. Now let us see the next example of exercise 1.4, fourth number example. So read the example carefully. What he has given? He has given if alpha and beta are the complex cube root of unity. Alpha beta क्या है? Complex cube root of unity है.
then show that first alpha square plus beta square is equal to alpha into beta, and this second is this. So try to solve number first. So what is alpha? Alpha is complex cube root of unity. So let us write, let alpha and beta are the complex cube root of unity. So that alpha and beta are complex conjugate of each other also. So therefore alpha is equal to minus 1 plus root 3i by 2, and second is beta minus 1 minus root 3i by 2. So therefore first we have to find sum alpha plus beta. Alpha plus beta, both having same denominator. Add numerator. This plus root 3i minus root 3i cancel. Therefore, what is alpha plus beta? Minus 1 minus 1, that is minus 2. Minus 2 by 2 is minus 1. So this is the first term, that is alpha plus beta. Sum of the roots alpha plus beta. So same ऐसा 10th क्लास में भी है आपको a plus b, that is alpha plus beta is minus b by a, and alpha into beta is c by a. If ax square plus bx plus c is equal to 0 is a quadratic equation, then sum of the roots, distinct roots, that is minus b by a, and product of the distinct roots is always c by a, right? So same यही है वहाँ पर alpha plus beta is minus 1. Then find out alpha into beta. Alpha into beta. This dot means product. Either multiply cross or dot that represent a multiplication. So alpha into beta is minus 1 plus root 3i by 2. Beta is minus 1 minus root 3i by 2. So therefore a plus b, a minus b, a square minus b square divided by 2 into 2. This is simple multiplication of two bracket. Numerator is a plus b and a minus b, that is a square minus b square. So now it is a minus 1 square is 1 minus root 3i square is 3i square divided by 4. So it is 1 plus 3 by 4. It's a 4 by 4, that is 1. This is alpha into beta. So why this is I square becomes minus 3, that becomes plus 3, because I square is minus 1. So write in the bracket I square ची value किती असते? minus 1. The value of I square is minus 1. Now see the example number first A. A is we have to prove alpha square plus beta square plus alpha into beta. So 10th में भी ऐसे सिमेट्रिक फॉर्म थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो इसको हम सम एंड प्रोडक्ट में कैसे राइट करेंगे? इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर minus 2 alpha into beta plus alpha into beta is minus alpha into beta. So this is minus 1 square 1. Alpha into beta is 1. Alpha plus beta is minus 1. So minus 1 square is 1. 1 minus 1 is equal to 0. So this is the first proof, that is the alpha square plus beta square plus alpha into beta. Answer कितना है? 0 है. So that is our proof. Okay, we will take next. Example number second from the same. So here alpha raised to 4 को हम alpha square whole square plus beta raised to 4 को beta square whole square. Alpha raised to minus 1 is 1 upon alpha. Beta raised to minus 1 is 1 upon beta. So last apply जो किया था वही करेंगे यहाँ पर. Alpha square plus beta square, it is equal to alpha plus beta whole square
माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर प्लस ये 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। देखो ये सिमेट्रिक फॉर्म है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फॉर्म है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अगर ये अल्फा रेस टू 4 प्लस बीटा रेस टू 4 है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले इफ लास्ट एग्जांपल में अप्लाई हुआ, अब ये एग्जांपल में अप्लाई किया। अब इसको हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। व्हाट इज दैट? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये होल स्क्वायर कैरी करना है एज इट इज माइनस ये 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर इज व्हाट? अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब देखो सब तरफ सम एंड प्रोडक्ट दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर सम है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। मीन्स वी हैव ओनली द फॉर्मूला फॉर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। दैट्स वाई वी कन्वर्ट दिस ऑल इंटू either sum of the roots and product of the roots. So this is like that. So now only replace here minus 1 square minus 2 into 1 ये whole square। ये minus 2 into alpha into beta is 1 square, alpha into beta is 1। जहाँ पर अल्फा इंटू बीटा है वहाँ पर 1 रखा, जहाँ पर अल्फा प्लस बीटा है वहाँ पर -1 रखा। सो फाइनली माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 1, 2 इंटू 1 इज 2 ये होल स्क्वायर, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 2 इंटू 1 ये प्लस 1 अपॉन 1 इज 1, 1 माइनस 2 इज -1 स्क्वायर, 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1, -1 square is 1, 1 minus 2 plus 1, 2 minus 2, what is the answer? 0। So answer of this is 0। हमें प्रूव करना था इसका आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। पहले का भी आंसर 0 आया था, इसका भी आंसर 0 आया था। So ये सब दिस ऑल अबाउट द 10th knowledge, 10th class knowledge means we have to convert such type of examples into either sum or product of the roots। So इसका sum का फॉर्मूला है -1 और प्रोडक्ट का फॉर्मूला कितना है? 1। 10 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी -b/a और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी? c/a। वही टाइप के एग्जाम्पल्स है। सो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस। सो टुडे इज इनफ हियर, वी विल टेक मोर एग्जाम्पल्स ऑन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।